Welcome back. This is Bilal, and this lecture is based on diagnosis of Mycobacterium. तो जैसे हम जानते हैं कि in my previous lecture we were discussing about Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, and Mycobacterium leprae. Then we discussed different infections which are caused by Mycobacterium. We discussed about pathophysiology, pathogenicity, and clinical signs and symptoms of Mycobacterium tuberculosis. And in the end, we discussed about primary TB and secondary TB. Now, in this lecture, we have to discuss about diagnosis of Mycobacterium. And with this, we have to discuss about treatment of Mycobacterium tuberculosis. अब जब भी हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री because being a physician or being a doctor, it is very important for you to take a proper history. And while taking a proper history, you have to keep one thing in your mind, that if a patient comes to you with consecutive cough from 2 to 3 weeks, which means that if a patient comes to you and he or she has been taking antibiotic for 2 to 3 weeks, and irrespective of that thing, she or he has consecutive cough from 2 to 3 weeks, then it will indicate towards Mycobacterium tuberculosis. And with this, if patient is coughing up blood, अगर किसी पेशेंट को कफिंग के साथ ब्लड भी आता है और उसे पायरेक्सिया है, फीवर है, then it may also indicate towards Mycobacterium tuberculosis. Now here the thing is कि ये जो पायरेक्सिया है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के केस में होगा. पायरेक्सिया इज़ अ कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मैनी अदर इन्फेक्शंस, many other bacterial infection, like if you're talking about staphylococcus or streptococcus or any other infection, then this pyrexia or this fever is very common sign and symptom. Then एक ऐसा साइन जो टिपिकली इंडिकेट करता है टुवर्ड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ एक्सेसिव वेट लॉस. एक्सेसिव वेट लॉस है और इसके साथ नाइट स्वेटिंग है, तो ऑल दीज साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट टुवर्ड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर हिस्ट्री, अगर सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरफ हिंट करते हैं, then you have to perform different tests. Like first of all, you have to perform tuberculin test. Tuberculin test में हम क्या करते हैं? We have to inject injection into the dermis of the patient. और उस इंजेक्शन में we have basically purified protein derivatives. तो हमने 0.1 ml purified protein derivatives इंजेक्ट करने हैं into the dermis of the patient. Now the thing is that what is meant by this PPD, purified protein derivative? It is not more than the Mycobacterium tuberculosis. Basically हम क्या करते हैं कि Mycobacterium tuberculosis को कल्चर करते हैं, उसको हीट किल करते हैं, उसको हीट किल करने के बाद उसका फिल्ट्रेट लेते हैं. उस फिल्ट्रेट में जो कुछ भी आपके पास आता है वो एक्चुअली आपके प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं. तो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स कुछ भी नहीं है. बेसिकली दीज purified protein derivatives are heat killed particles of Mycobacterium tuberculosis जो कि आपने किसी भी पेशेंट की डर्मिस में एंटर करने बाय इंजेक्शन. अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं तो जस्ट इमेजिन डैट कि दिस इज़ योर स्किन, दिस इज़ योर डर्मिस, और जब आप इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं अल्टीमेटली यू आर इंजेक्टिंग प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स. अब ये प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स डर्मिस में आके हमारे इम्यून सिस्टम के डिफरेंट सेल्स जिनमें यू हैव मैक्रोफेजेस, यू हैव न्यूट्रोफिल्स, यू हैव अदर एपीसीज, वो उस साइट पे रश करते हैं जहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल आता है. बेसिकली दीज प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स आर फॉरेन पार्टिकल्स फॉर और इम्यून सिस्टम. जस्ट इमेजिन कि मैक्रोफेज आता है और मैक्रोफेज
इन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को इनगल्फ करता है, इसकी फैगोसाइटोसिस करता है और फैगोसाइटोसिस करने के बाद इसे रिप्रेजेंट करता है ऑन इट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ MHC क्लास 2। नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको एक्टिव टीबी नहीं है या प्रीवियसली आपको टीबी का एक्सपोजर नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा जो यूजली फर्स्ट टाइम एक फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जैसे जैसे एक्ट करता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम वही रिएक्शन होगा। लाइक इस MHC क्लास 2 को देन रिकग्नाइज करने एक नाइव टी सेल आएगा। उस नाइव टी सेल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नाइव टी सेल आएगा और मुकम्मल तौर पे वो सारा प्रोसेस होगा जो इम्यून सेल्स प्रोसेस करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अगर आपको प्रीवियसली कोई ना कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या फिर आपको फ़िलहाल एक्टिव या लेटेंट टीबी है, तो तब आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज कर चुका होता है, उसके अगेंस्ट मेमोरी टी सेल्स जनरेट कर चुका होता है। तो इन दैट केस अगर आपको टीबी है तो फिर इस मैक्रोफेज ने जो इन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को MHC2 पे रिप्रेजेंट किया है, इनको रिकग्नाइज करने नाइव टी सेल नहीं आते बल्कि मेमोरी टी सेल आते हैं, मेमोरी टी हेल्पर सेल 1 आते हैं। अब ये मेमोरी टी हेल्पर सेल 1 हैं, ये आके इसको रिकग्नाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स जो इनके पास होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज CD4 रिसेप्टर्स। अब ये जो टी हेल्पर सेल 1 है, ये टी हेल्पर सेल 1 इस मैक्रोफेज को कहते हैं कि यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, मैं ऑलरेडी इस पैथोजन को जानता हूँ, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटर हो चुका था, इसके अगेंस्ट हमने फ्ला कीमोकाइंस रिलीज़ किए थे, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं बेसिकली इंटरफेरोन गैमा रिलीज़ करता हूँ। अब ये इंटरफेरोन गैमा क्या करता है, इसका एक फंक्शन ये है कि इस इंटरफेरोन गैमा ने डायरेक्टली इस मैक्रोफेज को जल्दी एक्टिव कर देना है। जब ये मैक्रोफेज एक्टिव होगा तो इस मैक्रोफेज से कीमोकाइंस और कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज होते हैं। उन कीमोकाइंस और कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से बेसिकली क्या होता है, दूसरे इम्यून सेल्स जिनमें यू हैव अदर मैक्रोफेजेस, यू हैव न्यूट्रोफिल्स एंड यू हैव मैनी अदर इम्यून सेल्स, वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाते हैं। इन शॉर्ट वो डर्मिस में आ जाएंगे। जब इधर बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो स्वेलिंग होती है, इधर बबल क्रिएट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर जहां आपने वो इंजेक्शन लगाया होता है। आपने जस्ट उस बबल का डायमीटर नोट करना है। इफ़ इट इज़ मोर देन 5 मिलीमीटर तो देन you can suspect the patient towards Mycobacterium tuberculosis। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का वो डायामीटर हो तो उसे Mycobacterium tuberculosis होगा। इंटरमीडिएट जो आप वैल्यू लेते हैं वो मोर देन 5 मिलीमीटर होती है, तो इट शुड बी इन बिटवीन मोर देन 5 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। अगर 10 मिलीमीटर तक डायामीटर है तो इट मीन्स दैट पेशेंट हैज़ Mycobacterium tuberculosis। अच्छा, ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम टबरकलिन टेस्ट को एक और नाम देते हैं विच इज़ नोन एज मैंटॉक्स टेस्ट। अब इस मैंटॉक्स टेस्ट और टबरकलिन टेस्ट का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि मैंटॉक्स टेस्ट के केस में या टबरकलिन टेस्ट के केस में इवन हम प्रॉपरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि मैंटॉक्स टेस्ट में समटाइम हमें फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या होता है कि मैंटॉक्स टेस्ट के मुताबिक पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन वो रिज़ल्ट फॉल्स है। यानी मैंटॉक्स टेस्ट के मुताबिक आपने डायग्नोज कर लिया कि दैट पेशेंट हैज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बट इन रियल उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। उनमें से कुछ रीजंस ये हैं कि मे बी उस पेशेंट ने प्रीवियसली BCG वैक्सीन यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट वैक्सीन ली हो। अगर उसने प्रीवियसली वैक्सीन ली है तो अल्टीमेटली उसका इम्यून सिस्टम
उस बैक्टीरिया को जानता होगा, उसे रिकग्नाइज कर सकता होगा। तो इन डैट केस अगर उसने बीसीजी वैक्सीन ली है तो उसकी बॉडी में मेमोरी टी हेल्पर सेल 1 मौजूद होंगे। सेकेंडली, बेसिकली अगर किसी पेशेंट में लेटेंट इन्फेक्शन है तो लेटेंट इन्फेक्शन के केस में भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। उस पेशेंट में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन मौजूद है। लेटेंट इन्फेक्शन क्या है कि उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको ओवरकम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबरकल्स। तो लेटेंट इन्फेक्शन के केस में या बीसीजी वैक्सीन के केस में यू विल गेट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। सम टाइम मेंटॉक्स टेस्ट की वजह से हमारे पास फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ जाते हैं। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट क्या है कि मेंटॉक्स टेस्ट कहेगा या मेंटॉक्स टेस्ट से आप ये डायग्नोस करेंगे कि इस पेशेंट में टीबी नहीं है लेकिन उसमें टीबी होता है। तो ऐसे रिज़ल्ट को हम फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट कहते हैं। अब फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट क्यों आता है, इसकी एक रीज़न तो ये है कि अगर एक बंदे को रीसेंट एक्सपोजर हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, बिल्कुल रीसेंट एक्सपोजर हुआ है कि अभी उसके इम्यून सेल ने उसे प्रॉपर्ली रिकग्नाइज नहीं किया, उसके अंदर मेमोरी टी हेल्पर सेल 1 नहीं बने, इन डैट केस उसका जो रिज़ल्ट है इट विल बी फॉल्स नेगेटिव। अनदर थिंग कि अगर एक बंदे को HIV का इन्फेक्शन है या आप कह लें कि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन इन दैट केस इवन चांसेस हैं कि मेंटॉक्स टेस्ट आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे। अच्छा, अब ये तो हो गया ट्यूबरकुलिन टेस्ट। चूँकि इसकी बेस पे प्रॉपरली आप डायग्नोस नहीं कर सकते माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, तो फिर आप एक्सरे एनालिसिस करते हैं। एक्सरे एनालिसिस में आपको वाइट लाइंस मिलते हैं लंग्स में। अगर तो एक्टिव टीबी है और एक्टिव टीबी के साथ साथ आपको लंग्स में वाइट लाइंस मिलते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये वाइट लाइंस इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो आप एक्सरे एनालिसिस करते हैं और एक्सरे एनालिसिस में ये जो आपके पास वाइट लाइंस होते हैं जो कि आपको लंग्स में मिलते हैं, इन वाइट लाइंस को आप गोन्स फोकस का नाम देते हैं। अब ये गोन्स फोकस लंग्स के वाइट लाइंस को हम कहते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन में लंग्स में क्रिएट होते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब यही अगर वाइट लाइंस लंग्स के साथ साथ एडजेसेंट लिम्फ नोड में भी हो जाते हैं तो एज अ होल हम उसे गोन्स कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। यानी अगर गोन फोकस या वाइट लाइन लंग्स में भी हैं और वही वाइट लाइंस आपको लिम्फ नोड में भी नज़र आते हैं, तो लिम्फ नोड के गोन फोकस को या लिम्फ नोड के वाइट लाइंस को और लंग्स के वाइट लाइंस को एज अ होल आप नाम देंगे गोन्स कॉम्प्लेक्स का। लेकिन इधर भी एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के केस में तो आपको वाइट लाइंस मिलते हैं लेकिन हमारे पास माइकोटिक मैसीटोमा इन्फेक्शन है जो कि फंगस की वजह से होती है। इस माइकोटिक मैसीटोमा इन्फेक्शन में भी इवन आपको वाइट लाइंस मिलते हैं लंग्स पे। दैट केस यू कैंट डिस्टिंग्विश कि ये जो वाइट लाइंस हैं आइदर दीज लाइंस आर बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दीज लाइंस आर बिकॉज ऑफ माइकोटिक मैसीटोमा इन्फेक्शन। अब एक्सरे के बाद आप एक और टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट टेस्ट इज़ एनिमल्स इनोकुलेशन टेस्ट। एनिमल्स इनोकुलेशन टेस्ट में हम गिनी पिग लेते हैं और गिनी पिग को हम इंजेक्ट करते हैं विद 0.5 ml कंसनट्रेटेड सैंपल। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को 0.1 ml लेके गिनी पिग पे लगाते हैं। इसको हम इंक्यूबेशन देते हैं 2 to 3 डेज़ की या 3 to 4 डेज़ की, एंड आफ्टर डैट हम इसका वेट लॉस चेक करते हैं कि आइदर गिनी पिग का वेट लॉस हुआ है या नहीं। फिर हम इस पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट अगर पॉजिटिव है इट मीन्स डैट के पेशेंट का जो सैंपल था उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। सेकेंडली हम इसकी मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, क्या 4 या 5 डेज़ के बाद इसमें मोर्टेलिटी तो नहीं आ जाती, इसकी डेथ तो नहीं हो जाती। लेकिन ये जो एनिमल्स इनोकुलेशन टेस्ट है ये हम पहले करते थे, अब ये रिकमेंडेड नहीं है।
इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के साथ हम कल्चरिंग करते हैं। सैम्पलिंग हमने करनी है टीबी के केस में यूजली स्प्यूटम सैंपल की। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, पल्मनरी इन्फेक्शन काज करता है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक अ स्प्यूटम सैंपल। अगर माइकोबैक्टीरियम आपकी मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन काज करता है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक CSF मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर यही माइकोबैक्टीरियम लिम्फ नोड्स में मौजूद है, तो यू हैव टू टेक अ लिम्फ एज अ सैम्पल। बट यूजली माइकोबैक्टीरियम के केस में चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन होती है, तो इन दैट केस यू विल टेक स्प्यूटम सैंपल। अब आपने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके आपने इसकी कल्चरिंग करनी है मीडिया पे, एगर पे। 2 एगर आप यूज़ कर सकते हैं या 2 मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिबोस एगर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एलजे मीडिया यूज़ कर सकते हैं। एलजे मीडिया को हम लो स्टेन जेंसन मीडिया भी कहते हैं। दिस इज़ ग्लिसरेटेड एग बेस्ड मीडियम, जिसमें जब आप माइकोबैक्टीरियम को ग्रो करते हैं तो इनिशियली माइकोबैक्टीरियम क्रीमी वाइट कलर क्लोनीज देता है, और इन दी एंड ये जो क्रीमी वाइट कलर क्लोनीज थी, वाइट कलर की जो इनिशियली आपको क्लोनीज मिलती हैं, वो इन दी एंड बफी कलर क्लोनीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एलजे मीडिया पे ग्रोथ लेने के लिए, इसे कल्चर करने के लिए एटलीस्ट आपको 6 to 8 वीक्स लगते हैं। यानी कि माइकोबैक्टीरियम एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है कि ये 6 to 8 वीक्स लेता है ग्रो होने के लिए, कल्चर होने के लिए ऑन एलजे मीडिया। फर्दर अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये हमारे पास एलजे मीडिया पे माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको बफी कलर की अगर क्लोनीज मिलती हैं, देन इट विल बी योर माइकोबैक्टीरियम। देन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। अगर तो आपने एलजे मीडिया से डायरेक्टली इनोकुलम लिया है और उसकी एसिड फास्ट ट्रेनिंग की है, तो देन आप उससे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप सैंपल ले रहे हैं, स्प्यूटम सैंपल ले रहे हैं या सैंपल लेके उसकी माइक्रोस्कोपी करना चाहते हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू परफॉर्म पेट्रोफ मेथड। पेट्रोफ मेथड में आप क्या करते हैं, आप एक एपेंडॉफ लेते हैं, जिस एपेंडॉफ को आपने सेंट्रीफ्यूज में रखना है। इस एपेंडॉफ में अपना सैंपल और 4% NaOH डालते हैं। इसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स। एंड आफ्टर डैट आप क्या करते हैं, आप सेडिमेंट लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसका जो सुपरनेटेंट, ऊपर सुपरनेटेंट आता है, उसको डिस्कार्ड करके नीचे से इसकी पैलेट लेनी है, इसका सेडिमेंट लेना है। उस पैलेट के साथ आपने एसिड फास्ट ट्रेनिंग करनी, उस पैलेट की आपने बेसिकली एसिड फास्ट ट्रेनिंग करनी है। एसिड फास्ट ट्रेनिंग में आपने उसको कार्बल फंक्शन के साथ ट्रीट करवाना है, देन आपने उसको हीट पे रखना है। तो इस तरह आपकी एसिड फास्ट ट्रेनिंग हो जाएगी। आफ्टर डूइंग द एसिड फास्ट ट्रेनिंग आपने उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। अंडर द माइक्रोस्कोप आपको रॉड शेप पिंक और रेड कलर के अगर रॉड्स मिलते हैं, देन इट विल बी योर माइकोबैक्टीरियम। अब अगर आपने टबरक्लिन टेस्ट किया है, टबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव है, आपने एक्सरे देख लिया है, एक्सरे में आपको लाइंस मिल रहे हैं, आपने कल्चर करके देख लिया है, आपने माइक्रोस्कोपी करके देख लिया है, और ये सारा कुछ करने के बाद इफ़ इट हिंट टुवर्ड्स माइकोबैक्टीरियम, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को और माइकोबैक्टीरियम बोविस को डिस्टिंग्विश करने के लिए बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में आप एक नायासिन टेस्ट करते हैं। ये नायासिन टेस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम बोवाइन के लिए ये नेगेटिव होता है। फर्दर आप नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट करते हैं। अगर तो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इट मींस कि आपके सैंपल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और अगर ये नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इट मींस कि आपके सैंपल में माइकोबैक्टीरियम बोवाइन है। देन आप सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप अलाइसा कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अलाइसा भी अब इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर आप कुछ मोलेकुलर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनमें आप फैट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फैट टेक्निक मींस फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक, जिसमें आप रोडामीन और यूरामीन को
एंटीबॉडी के तौर पे लेते हैं, आप अपने सैंपल के साथ इसे रिएक्ट करवाते हैं, अगर आपको फ्लोरेसेंस मिलती है, लाइट मिलती है, देन इट मीन्स कि आपके सैंपल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है। फर्दर आप लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, आप बैक्टीरियोफाज 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, आप गैमा इंटरफेरोन ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम के केस में हमारे टी हेल्पर सेल 1 ने इंटरफेरोन गैमा रिलीज़ किया था टू एक्टिव द मैक्रोफेज। तो आप उस इंटरफेरोन गैमा या ये गैमा इंटरफेरोन ऐसे करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है या नहीं। फर्दर आप माइक्रो अरे टेस्ट कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये जितने भी टेस्ट हैं ये हम यूज़ तो कर सकते हैं और प्रीवियसली ये यूज़ होते रहे हैं, लेकिन अब ये इतने रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड टेस्ट कौन से हैं? वो ये है कि आप बैकटेक टेक्निक यूज़ करें। बैकटेक टेक्निक एक ऑटोमेटेड टेक्निक है। जैसे हमें पता है कि हम अगर माइकोबैक्टीरियम की कल्चरिंग करते हैं तो कल्चरिंग के दौरान हमें एटलीस्ट 6 to 8 वीक लगते हैं, लेकिन बैकटेक टेक्निक करते वक्त अप्रॉक्सीमेटली हम माइकोबैक्टीरियम को 7 to 6 और 7 to 8 डेज़ में डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर बैकटेक टेक्निक में हम MGIT 960 यूज़ कर सकते हैं। MGIT 960 क्या है? दिस इज़ बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ incubation tube 960। then in the end which is very important test वो ये है कि आप रियल टाइम PCR कर लें। PCR आपको बता देगा कि आइदर दिस इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम और माइकोबैक्टीरियम बोवाइन। तो आप रियल टाइम PCR कर लें, ये टेक्निक्स ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो इन डैट वे आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। Now after diagnosis, if you're talking about control and treatment of Mycobacterium tuberculosis, तो control में we have vaccine, we have live attenuated BCG vaccine in case of Mycobacterium tuberculosis. इस वैक्सीन के साथ साथ even you can use N95 mask and you can maintain social distancing. नाउ द थिंग इज़ कि अगर किसी बंदे को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन सारी एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकता है। लाइक ही कैन यूज़ आइसोनाइजिड, ही कैन यूज़ रिफेम्पिसिन, ईथनब्यूटोल एंड पैराजीनामाइड। अब ये जो ट्रीटमेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं फॉर प्रॉपर रिकवरी, और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन एंटीबायोटिक्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इट मे काज हिपैटोटॉक्सिसिटी और इट मे इवन काज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन यू हैव टू डू द LFT एंड RFT जस्ट टू चेक कि क्या इन मेडिसिन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे लीवर पे या किडनी पे। अब जो माइकोबैक्टीरियम है इट इज़ बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, यानी कि ये माइकोबैक्टीरियम इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता जा रहा है। अब ये एंटीबायोटिक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम। अब इसी वजह से हम जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं तो उससे पहले हम लाइन प्रोब ऐसे करवाते हैं। लाइन प्रोब ऐसे बेसिकली एक PCR टेक्निक है जो कि 2 चीज़ें डिटेक्ट करती है। एक ये कि क्या माइकोबैक्टीरियम मौजूद है या नहीं, दूसरा ये डिटेक्ट करती है कि माइकोबैक्टीरियम रिफेम्पिसिन या आइसोनाइजेड से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। क्या ये रिफेम्पिसिन या आइसोनाइजेड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। अगर तो हो सकते हैं तो वी विल यूज़ रिफेम्पिसिन एंड आइसोनाइजेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम, और अगर नहीं हो सकते तो फिर हम दूसरी मेडिसिन को यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। So this is all. Here we discuss about diagnosis of Mycobacterium and treatment of Mycobacterium tuberculosis.